Exercise 5.2. Question number 7. Who told you, Palak, that I have not checked the books? I have checked each and every book. Those who have submitted me on that day, जिस दिन आपको दिया गया था मैसेज में. I have checked each and everyone's book. जिस दिन आपने बुक सबमिट किया था उसी दिन आपका बुक्स चेक कर दिया था मैंने. I have the names also who have submitted me the books. Okay. So see now, what is the question? Suresh is 3 years older than his brother Ramesh. 6 years ago, Suresh was 4 times the age of the Ramesh. Find their present ages. Okay. First of all, I will ask you few questions. Suppose my today's age is 27 years. Okay. My today's age is 27 years. So what is my age 3 years ago? Yes. What will be my age 3 years ago? 24 years. 27 में से आपने क्या किया है? 3 को सब्सट्रैक्ट किया है to get my age 3 years ago. Okay. My today's age is 27 years. What will be my age 4 years afterwards? या फिर 4 years hence? It will be 31 years. Okay. क्योंकि आज का मेरा एज है 27, उसमें मैं 4 ऐड कर दूंगा तो मुझे 4 साल बाद का एज मिल जाएगा. दैट विल बी 31 ईयर्स. इज इट क्लियर टू यू हाउ आई एम कैलकुलेटिंग इट? अगर बिफोर निकालना है तो मुझे सब्सट्रैक्शन करना पड़ता है, अगर आफ्टर का मुझे निकालना है तो मुझे एडिशन करना पड़ता है. ओके. नाउ सी, दिस इज सुरेश, दिस पर्सन इज सुरेश, and this person is Ramesh. Okay, I have to calculate the age of both the people. Now see, you will ask me the questions like this कि sir ये figure draw करना है. It is just for your explanation. Okay, it is just for your explanation. Okay, no need of this figure. ये आपको समझ में आना चाहिए, उसके लिए ये figure है बस. Suresh is 3 years older than his brother Ramesh. Okay, these two are brothers. Suresh and Ramesh are brothers. So do we know the age of Ramesh, present age of Ramesh? Do we know the present age of Suresh? Vidhi, after the session you call me. Okay, after the session you call me. That time I will talk regarding that. Okay, now in the session just pay attention on the session. Suresh is 3 years older than his brother Ramesh. So let the present age of Ramesh is equal to x years. We don't know his present age, so we have taken it as x years. अभी ये statement पढ़ के Suresh is 3 years older than his brother Ramesh. Tell me what will be the present age of Suresh? बोलो. Read that statement and from that statement tell me what will be the present age of Suresh. सुरेश 3 साल बड़ा है ओके रमेश से. सो 3 + x हो जाएगा, या फिर x + 3 भी लिख सकते हो आप उसको. x + 3 years. 3 years ओल्डर बोला है, ओल्डर यानी 3 साल ज्यादा है. ओके, तो प्रेजेंट एज ऑफ सुरेश हो जाएगा x + 3. 3 टाइम्स वर्ड ने यूज किया है, आप 3x तब करोगे, टाइम्स वर्ड आता है वहां पे. यहाँ पे 3 years ओल्डर बोला है यानी 3 साल ज्यादा, यानी x + 3. Okay, so the present age of Suresh is what? x + 3 years. Now what is the next statement? 6 years ago. सबसे पहले हम लोग, हमारे पास इनका प्रेजेंट एज है. ओके, तो हम लोग 6 years ago का एज निकाल लेंगे पहले दोनों का. 6 years ago. Tell me what will be the age of Ramesh.
रमेश आज अगर x ईयर्स का है तो 6 साल पहले का एज हो जाएगा x-6। 6 साल पहले का एज कितना हो जाएगा x-6। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, मेरा आज का एज है 27 ईयर्स। 3 साल पहले का एज अगर मुझे निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 27 में से 3 सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा तो 24 मिलेगा। तो वैसे यहाँ पे रमेश का आज का एज है x। 6 साल पहले का अगर मुझे निकालना है तो उसमें से मुझे 6 सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो x-6 years विल बी द एज ऑफ रमेश 6 years ago। वैसे ही मुझे एज ऑफ सुरेश बोलो, सुरेश, RESH। सुरेश का प्रेजेंट एज है x+3। 6 साल पहले का अगर मुझे निकालना है तो प्रेजेंट में से मुझे 6 माइनस करना पड़ेगा, तो x+3 - 6 व्हाट इट कम्स, x-3 years। तो सुरेश का प्रेजेंट सॉरी, सुरेश का 6 साल पहले का एज कितना आएगा, x-3 years। इज इट क्लियर टू यू? इज इट क्लियर टू यू? इज इट क्लियर टू यू? प्रेजेंट एज में से जितने साल पहले का एज निकालना है उतना सब्सट्रैक्शन करना पड़ता है। यहाँ पे 6 साल पहले का निकालना है तो प्रेजेंट एज है x+3, उसमें से 6 सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि 6 साल पहले का एज चाहिए, तो इट विल कम x-3, बिकॉज +3 - 6 इज व्हाट, -3। ओके, अब फिर से स्टेटमेंट पढ़ो। सुरेश वॉज 4 times द एज ऑफ रमेश, यानी 6 साल पहले एक कंडीशन दी है उसने, क्या दी है, सुरेश इज 4 times ऑफ रमेश। तो सुरेश का 6 साल पहले का एज कितना आया है, x-6, वो यहाँ पे आ जाएगा सुरेश के नीचे। 4 मल्टीप्लाइड बाय रमेश का 6 साल पहले का एज कितना निकला है, x-3। बस ये इक्वेशन को सॉल्व करो, x का वैल्यू निकालो, टेल मी द वैल्यू ऑफ x, व्हाट इट कम्स। So x-6, it is equal to 4 multiplied by x-3। ये 4 को अंदर मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 4x-12, और यहाँ पे x-6 एज इट इज रहेगा। ब्रिंग ऑल द वेरिएबल टर्म्स ऑन वन साइड एंड कांस्टेंट ऑन द अदर साइड। सो x-4x विल बी इक्वल टू -12 + 6। ये 6 इधर आ गया तो ये +6 हो जाएगा। ओके, तो ये आ जाएगा -3x विल बी इक्वल टू -6। सो x विल बी इक्वल टू 2। अभी स्टार्टिंग में देखो हमने x किसको पकड़ा था, हमने x पकड़ा था रमेश के प्रेजेंट एज को। तो रमेश का प्रेजेंट एज कितना है, 2 years। यहाँ पे x का वैल्यू डालो, सुरेश का प्रेजेंट एज निकालो, 2 + 3 5 years आ जाएगा। ओके, so the present age of Ramesh is 2 years and present age of Suresh is 5 years। Is it clear to you? Palak, I have said it correct. सर वो सुरेश का एज x-3 था और रमेश का x-6। सुरेश का एज x-3 था, सुरेश का एज यहाँ पे देखो x+3 है, प्रेजेंट एज। ओके, और 6 साल पहले का निकालना है तो x+3 - 6 करना पड़ेगा, इट विल कम x-3। एवरीथिंग इज करेक्ट। सर आपने सुरेश के नीचे x-6 लिखा। ओ करेक्ट करेक्ट, यहाँ पे x-3 आएगा, x-3, और रमेश के जगह पे आ जाएगा x-6। करेक्ट, वेट आई विल मेक द करेक्शन। Thank you, Palak. It is correct. Whatever you have said, I made a mistake in writing. Okay. यस सर। So now I will make the correction. सुरेश के जगह पे यहाँ पे x-3 आना चाहिए। 4 मल्टीप्लाइड बाय रमेश के जगह पे यहाँ पे x-6 आना चाहिए। तो अभी यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको, x-3 विच इज इक्वल टू 4 इन ब्रैकेट x-6। दिस विल बिकम व्हाट, 4x - 24। ओके,
x माइनस थ्री, ये 4x वाला जो टर्म है वेरिएबल वाला टर्म, इसको इधर भेज देंगे, x माइनस 4x हो जाएगा, ये -24 और ये +3 हो जाएगा इधर आने के बाद। तो ये -3x विल बी इक्वल टू -21, सो x विल बी इक्वल टू 7. Correct. So the present age of Ramesh is what? 7 years. What will be the present age of Suresh then? 3 plus x, that is 10 years. Yes, sir. Okay. You Yes. check today's video 2 to 3 times. Then only it will be clear to you. Okay. Okay, sir. Mute. See the next question then. ये एज वाले क्वेश्चन हायर क्लासेस में भी आते हैं. हाँ? The total cost of 3 bats and 2 balls is 745 rupees. If a bat cost rupees 40 more than a ball, find the price of each. By the way, who is the captain of Indian cricket team? Who is the captain of Indian cricket team? Yes, Om Jadhav. Boys will give the answer of this question. विराट कोहली. Okay, Virat Kohli. Correct. So, यहाँ पे सर क्रिकेट टीम ना. your voice is breaking, beta. यस Mute. वो सर ना. हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे आप? सर ऑफ क्रिकेट टीम यू आर सेइंग ना. हाँ तो क्रिकेट टीम, इट इज करेक्ट ना, विराट कोहली. ओके सर. म्यूट योरसेल्फ. लेट मी एक्सप्लेन द क्वेश्चन फर्स्ट. ओके, तो यहाँ पे ये 3 बैट है देखो. दिस इज बैट नंबर 1, दिस इज नंबर 2 एंड दिस इज बैट नंबर 3. ओके, और 2 बॉल भी है देखो यहाँ पे. ओके, this is ball number 1, this is ball number 2. So what they have said, the total cost of 3 bats and 2 balls is rupees 745. यानी ये अगर आप पूरा अगर आप खरीदोगे शॉप पे जाके तो कितने में मिलेगा? 745 रुपीज में इतना सब कुछ मिल जाएगा आपको, 3 बैट और 2 बॉल. ओके, अभी यहाँ पे क्या बोला है? इफ अ बैट कॉस्ट 40 रुपीज मोर देन अ बॉल. सो डू वी नो द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल? क्या हमको पता है एक बॉल का कॉस्ट कितना है? Just give the answer in yes or no in the chat box. We don't know. So let the cost of 1 ball is equal to rupees x. हमको पता नहीं है, तो ये 1 बॉल के कॉस्ट पे से बैट का कॉस्ट हम लोग ये इक्वेशन पे से बना सकते हैं. बोलो क्या आएगा? इन टर्म्स ऑफ x ही आएगा वो. Therefore cost of 1 bat, what it will come? बैट का कॉस्ट बॉल के कॉस्ट से 40 रुपए ज्यादा है, तो बॉल का कॉस्ट है x, उसमें मुझे 40 जोड़ना पड़ेगा. दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ बैट. सो रुपीज x प्लस 40 will be the cost of bat, 1 bat. Okay, now what they have said, total cost of 3 bat and 2 balls is equal to 745. Okay, so 3 bat plus 2 ball is equal to 745. तो अभी मेरे पास एक बॉल का कॉस्ट है कितना है? x. एक बैट का कॉस्ट है कितना है? x प्लस 40. तो 3 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 40 करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि एक बैट का कॉस्ट है x प्लस 40, और 2 मल्टीप्लाइड बाय x करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि एक बॉल का कॉस्ट है रुपीज x, विल बी इक्वल टू 745. इसको सॉल्व करो, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 3x प्लस 120 प्लस 2x will be equal to 745. All the variable terms keep it on LHS only. So 3x plus 2x it will come 5x. और ये 120 को उधर भेज दो, 745 में से 120 चला जाएगा तो कितना बचेगा बोलो मुझे? 745 minus 120. 745 minus 120, do it fast. 625. Okay, so x will come what? 625 divided by 5. How much it comes?
125। तो x हमने स्टार्टिंग में किसको पकड़ा था? बॉल को पकड़ा था। एक बॉल का कॉस्ट कितना हो जाएगा फिर? ₹125। एक बैट का कॉस्ट कितना हो जाएगा? 125 + 40 कितना होता है? 165। यहाँ पे वैल्यू पुट करो और फाइनल आंसर लिखो आप। Therefore, the cost of one ball is equal to ₹125. Therefore, the cost of one bat is equal to 125 + 40, which is equal to 165. Is it clear to you? Is it clear to you? Is it clear to you? Okay, next question. The perimeter of the rectangle is 134 centimeter if its length is 3 centimeter more than its breadth. Find the length and breadth. First of all, this is the rectangle. I will give the name to this. ABCD is the name of the rectangle. Tell me what will be the perimeter of this rectangle. Yes, Palak. बोलो perimeter क्या आएगा? Formula for perimeter. Yes. 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 Huh? Yes, sir. Perimeter of हाँ. rectangle is equals to हम्म. 2 into L plus B. See, the perimeter will come what? AB plus BC plus CD plus DA, which is equal to 134. Sum of all the sides for calculating the Yes. perimeter. Yes, this figure you will have to draw. Everyone will have to draw this figure. Okay, Okay, sir. वो बैट और बॉल का भी फिगर नहीं निकालना है. It was just for your explanation. But here, this rectangle, everyone will have to draw this. ओके तो Okay, अभी sir. ब्रेड्थ हमको पता नहीं है तो ब्रेड्थ हम लोग x ले लेंगे. X. तो लेंथ जो है वो 3 सेंटीमीटर ज्यादा है ब्रेड से, तो लेंथ क्या आ जाएगा? Yes, x so प्लस. X plus 3. तो ये x सेंटीमीटर और ये x Breadth प्लस and 3 length. सेंटीमीटर. तो लेंथ हमारा कितना है? x प्लस 3 सेंटीमीटर. X ब्रेड्थ हमारा plus कितना 3. है? x सेंटीमीटर. तो ए बी कितना है? Yes. x प्लस 3. Yes, X plus 3. बी सी कितना है? x Plus X. प्लस x X प्लस plus X plus X. x प्लस 3 आ जाएगा सी डी, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ. सो ये भी x प्लस Yes. 3 आ जाएगा और ये x आ जाएगा. विल बी इक्वल टू 134. तो So x प्लस x X प्लस x प्लस x ये आ जाएगा 4x. 4X 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 6. plus 6 विल बी इक्वल टू is equals to 134. 134. So 4X is equals to 134 minus 6. आगे So answer will come 128. अपॉन X is 4. equals to 128 upon 4. हम्म. So X is equals to 32. 32. What will be the unit? Centimeters. Centimeter. Yes. और x किसको So लिया है हमने? breadth को लिया है. So the breadth yes. will So be what? X is equals to 32. So breadth is X 32 and length is 32 plus 3. Correct. So 35 centimeters. So length आ जाएगा x plus 3, which is equal to 32 plus 3, which is equal to 32 plus 3, that is 35 centimeters. So we got the length also and we got the breadth also. Can you tell me the area of this rectangle now? We are having the value of length and breadth. Yes. What will be the So area then? perimeter 2 into 32 plus 35. That is perimeter, beta. That is not area. Area is what? Length into Area. breadth. Length into breadth. Yes. So length is 35, breadth is 32. 32. दोनों का product करो, you will get the area. Sir, it will come
Sir, 1120. Okay, 1120. See the last question now. Okay, last question of our chapter and exercise. Okay, who will tell me the meaning of this question? You read the question and tell me the meaning of the question. Try to explain me the meaning of the question. Then I will explain it. First you try it. कौन बताएगा? Okay, कलश बोलो कलश. Yes, sir. Sir, the question is 1/4 of a hot deer have gone to the forest. Sir, Okay. मतलब जो पूरा हर्ड है उसमें से जो 1/4 डियर है वो फॉरेस्ट गए और Okay. 1/3 of total number are grazing in the field and remaining 15 are drinking water on the bank of river. तो सर 1/3 जैसे 1/4 फॉरेस्ट गए और 1/3 फील्ड अपना घास फूस खा रहे और बाकी के जो 15 है वो रिवर पे पानी पी रहे. Find the total number of deer. तो सर ये जितने भी है 1/3 फॉरेस्ट में 1/4 ग्रेज कर रहे हैं 15 ड्रिंक कर रहे हैं वाटर तो उससे बोल रहे कि फाइंड द नंबर ऑफ डियर. Okay. So how we will get the number of deers? See, I will show you the image first. You see the image first. This is the herd of deers. Yes, sir. Sir, we will plus all the values. But see, 1/4. but see, a Kalash, 2 values are given in fraction and 1 value is given in numbers. Yes, sir. So we cannot add. Sir, we can 15 के नीचे सर 1 न्यूमरेटर लगा सकते ना. That is wrong. Yes, anyone else? Yes, you tried it very well, Kalash, no doubt in that. But आपने जो बोला है 15 के नीचे हम लोग 1 लगा देंगे, that is wrong. See, यहाँ पे suppose this is a pizza, huh? Okay, it is divided into 8 equal parts. अगर मुझे ये इतना वाला पोर्शन अगर फ्रैक्शन में निकालना है, फ्रैक्शन में, तो व्हाट विल बी द आंसर? फ्रैक्शन में अगर मुझे निकालना है इतना वाला पोर्शन, तो व्हाट विल बी द आंसर? टोटल पार्ट्स इज व्हाट 8 और उसमें से 3 पार्ट शेडेड है, सो द फ्रैक्शन दैट विल रिप्रेजेंट दिस पार्ट, इट इज व्हाट 3/8. और अगर मुझे नंबर्स में निकालना है ये कितने पीसेस है, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, सो दिस आर 3 पीसेस. दोनों में डिफरेंस है, ये फ्रैक्शन में आंसर है और ये पीसेस में आंसर है, दोनों में डिफरेंस है. ओके, दोनों को आप साथ में कंबाइन नहीं कर सकते हो. ओके, तो चलो ये पिज्जा का ही एग्जांपल लेके ये क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. फॉरगेट अबाउट द हर्ड ऑफ डियर. ओके, तो यहाँ पे 1/4 बोला है, ये पिज्जा का 1/4 कितना आएगा पहले ये बताओ मुझे. 1/4 कितना आएगा ये पिज्जा का? आई विल ड्रॉ वन मोर पिज्जा हियर. खाने के आइटम से जल्दी समझ में आता है क्वेश्चन. 1/4 कितना आएगा? व्हाट विल बी द 1/4? 1/4 यानी ये क्वार्टर पार्ट आ जाएगा पिज्जा का. यस और नो? दिस इज 1/4 ऑफ पिज्जा. इसी को हम लोग क्वार्टर पार्ट बोलेंगे. ओके, अब क्या बोला है? 1/3. मुझे ये पिज्जा का 1/3 बोलो. 1/3 यानी 3 हिस्सों में बांटना है आपको पिज्जा को. अगेन द सेम पिज्जा इज देयर, इसको 3 हिस्सों में बांटना है. ओके, सो दिस इज 1/3 नाउ. Yes or no? This is 1/3 of the pizza. This is 1/4 of the pizza. What they have said, 1/4 of the pizza, 1/4 of the herd of deer have gone to forest. Okay, so this much part. Now think about our actual question. So this much part is in forest. Okay,
एंड 1/3 ऑफ द टोटल नंबर यानी ये पूरा सर्कल दैट इज रिप्रेजेंटिंग द टोटल नंबर। ओके, तो उसमें से 1/4 फॉरेस्ट में है, 1/3 जो है दे आर ग्रेजिंग यानी वो घास चढ़ रहे हैं। ओके, this much number of deers they are grazing. Okay, and what they have said, ये पार्ट और ये पार्ट अगर हम लोग साथ में जोड़ देंगे, ओके, 1/4 और ये 1/3 वाला पार्ट, ये अगर हम लोग साथ में जोड़ देंगे तो मुझे रिमेनिंग पार्ट निकालना है। कैसे निकालूंगा मैं रिमेनिंग पार्ट? यस एनीवन? एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू ओनली नाउ। यस पलक, कैन यू टेल मी? पलक, 1/4 और 1/3 को अगर हम लोग साथ में जोड़ देंगे तो मुझे रिमेनिंग, ये देखो, ये 1/4 को मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ, यहाँ पे अटैच कर देता हूँ ये 1/3 को, सॉरी नीचे वाला जो 1/3, ये वाले पिज्जा में मैं ये 1/3 को जोड़ देता हूँ, तो मुझे ये व्हाइट वाला पार्ट निकालना है। मैं कैसे निकालूंगा? यस ओम जादव। Yes, sir. We हम्म, will first add 4 plus 3, 7, 7, 2 by 7. So, 5 by 8 is answer, sir. Sir, I solve it and then ये इतने जो डियर है वो फॉरेस्ट में चले गए हैं, इट इज 1/4, और ये इतने जो डियर है ये ग्रेजिंग मीन्स वो चर रहे हैं, घास चर रहे हैं। ओके, दे आर ग्रेजिंग, सो दिस इज 1/3 एंड दे आर ग्रेजिंग। तो मुझे रिमेनिंग निकालना है, ये व्हाइट वाला पोर्शन निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगा? मुझे इसका आंसर चाहिए बस। म्यूट योरसेल्फ सर ओम। हम उनको ऐड करेंगे ना। किसको ऐड करेंगे? किसको? सर उन दोनों को। किन दोनों को? सर 1/3 plus 1/4। करेक्ट। तो फिर डिनोमिनेटर निकालेंगे और उसका। किस में से सब्सट्रैक्ट करेंगे? ऐड करके किस में से सब्सट्रैक्ट करेंगे? ये व्हाइट वाले पोर्शन का मुझे फ्रैक्शन में आंसर चाहिए। और उसको उनको सर आपने सबसे पहला जो ये बताया था नहीं जम रहा है आपको? म्यूट योरसेल्फ। यस एनीवन एल्स? 3 यथार्थ by यथार्थ 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 यथार्थ। सर। बोलो। सर फर्स्ट वी लाइक 1/4 ऑफ द। मुझे ये व्हाइट वाले पोर्शन का आंसर चाहिए, मुझे बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। सर 1/4 plus 1/3। हाँ, वो किस में से सब्सट्रैक्ट करूं मैं? सर वी विल टेक फर्स्ट 15। Wrong. I want the answer of white portion. Anyone else? पलक, कैन यू टेल मी? पलक, ये फ्रैक्शन जिसको समझ में आया होगा फ्रैक्शन अच्छे से, he can only give me the answer. पलक, ये देखो, ये पूरा एक सर्कल है। ओके, उसमें से 1/3 1/4 जो है वो फॉरेस्ट में चला गया है, और उसमें से 1/3 जो है वो चरने चला गया है। तो मुझे व्हाइट वाले पोर्शन का आंसर कब मिलेगा? जब मैं 1 - 1/4 - 1/3 करूंगा। बोलो मुझे कितना आता है? ये 1 को हम लोग 1/1 लिख सकते हैं, -1/4 - 1/3। बोलो कितना आता है? एलसीएम ले लो, कितना आता है? 12 एलसीएम आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 - 3 - 4, कितना आता है? बोलो। 12 - 7, it will come 5/12. So this portion will be represented by 5/12. ये समझ में आया क्या सब लोगों को? ये समझ में आया क्या सब लोगों को? 5/12 कहाँ से आया है? 1 सर्कल था, उसमें से 1/4 जो है वो फॉरेस्ट में चला गया, 1/3 जो है वो ग्रेजिंग यानी चरने चला गया, तो बचा क्या? 5/12 बचा। अब ये 5/12 किसके बराबर है? ये 5/12 15 के बराबर है, क्योंकि ये 15 लोग हैं जो पानी पी रहे हैं, 5/12 पोर्शन से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं।
Okay, so this is equal to 15 drs. So here I can write 5 by 12, that is equal to 15 dr. Okay, so 1 will be equal to how many dr that we have to calculate, that is x drs. Do the cross multiplication here. So x multiplied by 15 by 12, it is equal to 1 multiplied by 15. So x, this will become 15x divided by 12 will be equal to 15. So x will be what? 12 multiplied by 15 divided by 15. 15 cancel हो जाएगा, x will come equal to 12. So how many drs are there? 12. No, something is wrong, huh? Something is wrong. Because 15, wait a minute. 1/3 of the total deer are grazing in the field and remaining are drinking water. And remaining 15 are drinking water. So 5 by 12. Is it coming? यहाँ पे ये check करो. LCM is 12. यहाँ पे 12 आ जाएगा. यहाँ पे 4 है तो 3 आ जाएगा. यहाँ पे 3 है तो 4 आ जाएगा. So 12 minus 7, it will come 5 by 12. Okay. 5 by 12 आ गया यहाँ पे. तो 5 by 12 डियर रिप्रेजेंट करते हैं. 5 by 12 फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करता है 15 डियर. तो मुझे किसका वैल्यू चाहिए? मुझे 1 यानी ये कंप्लीट सर्कल का वैल्यू चाहिए. इट विल बी इक्वल टू x डियर. सो 5x multiplied by 5 by 12 which is equal to 1 multiplied by 15. तो 12 into 15 divided by 5 आना चाहिए यहाँ पे. 5, 15 नहीं, 5 आना चाहिए. 5 ones are 5 threes are, so the answer will come 36. Do the cross multiplication properly. Okay, here it is 5x, not 15x. 5x divided by 12. Okay, is it clear to you? And now you can ask me whatever your doubts are there. बोलो हर्षवर्धन, क्या प्रॉब्लम है? सर ये -1 -1 -4/1 सर ऐसे क्वेश्चन फ्रैक्शंस के चैप्टर में तो नहीं थे ना? फ्रैक्शन तो में समझ में नहीं। रैशनल नंबर में थे. रैशनल नंबर में थे. मैंने आपको बोला है कि ये जो कंप्लीट सर्कल है ये 1 है. ओके, उसमें से 1/4 ये वाला पार्ट जो है वो फॉरेस्ट में चला गया है. फॉरेस्ट में. हाँ सर समझे, क्योंकि कंप्लीट सर्कल और 1 है. ये 1/3 वाला जो है ये ग्रेजिंग यानी ये चरने चला गया है. तो ये दोनों को हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे ना 1 में से, क्योंकि हमको ये रिमेनिंग सर. व्हाइट वाला पार्ट निकालना है फ्रैक्शन में. हाँ सर. तो वो 5 by 12 आया. तो फ्रैक्शन में 5 by 12 आया, बट एक्चुअल में नंबर्स में वो 15 डियर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो 5 by 12 इट इज इक्वल टू 15 डियर. सो 1 मींस हाउ मेनी डियर? 1 यानी ये कंप्लीट सर्कल. यस. ओके, you check today's video 2 to 3 times, then only it will be more clear to you. ओम जादव बोलो क्या है? Sir, I don't understand to form equation of word problem, sir. Sir, like these questions. I have explained it beta. 2 to 3 times I have explained. You please check today's video again and again. You see the video, today's video. मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन, बहुत डीप में जाके आपको बहुत अच्छे से कंसेप्चुअली एक्सप्लेन किया है सब चीज आज. Check the video. Sir. Check the videos. Okay, we will stop here. Tomorrow we will start the new chapter. Everyone will check today's video 2 to 3 times.